50 in your NCERT. Okay, in this we will do about parallelogram. Okay, now going to first question. Given a parallelogram ABCD, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, so make a parallelogram ABCD. Complete each the statement along with the definition or the property used. Now, जो आपका यहाँ पे आपका सेंटर आ जाएगा, इसको आप मैच कर दीजिए. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ओ पे कर रहे हैं. फर्स्ट आपका आ जाएगी ब्लैंक AD इज इक्वल्स टू, AD जो है वो किसके इक्वल है? AD इक्वल्स टू BC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. नेक्स्ट एंगल DCB, एंगल DCB is equals to angle DAB because opposite angles in the parallelogram are equal. OC is equals to OA because diagonals of the parallelogram are always equal. Next, M of angle DAB plus M angle CDA. DAB and ये CDA ये is equals to 180 because they are adjacent angles और ये 180 के equal होते हैं. So this was for our first question, very easy. In second we have to find x, y, z. So let's see our first question. So first question is second का first. ये चीज दी हुई है A, B, C, D and this is 100. Now vertically opposite 100 degree is equals to y because of vertically opposite, so angle y is equals to 100 degree. इसको adjacent ले लो, angle y plus angle z equals to 180 degree because of adjacent angles. So y की वैल्यू 100 आएगी तो z will be 80. Vertically opposite z equals to angle x, vertically opposite, so angle x is equals to 80 degree. Done. Second question. In second we have given with one exterior angle. ये चीज दी हुई है x, y, z and this is your 50 degree. Now assume this angle 1 equals to 50 degree because vertically opposite ये दोनों adjacent हो जाएंगे. Angle 1 plus x equals to 180 degree because of adjacent angles. You have done in previous class. Okay, solve this properly. इसकी वैल्यू डालेंगे 50. X is equals to 130 degree. Next, ये z और angle z is equals to angle 1 because of linear pair. Sorry, these are linear pairs. So angle z plus angle 1 equals to 180 degree. ठीक है, तो आपकी जो angle 1 है वो 50 है, तो angle 1 is 130 degree. Next, only y is left. Here z will be there. Now y is left, so angle x equals to angle y because of vertically opposite, so angle y is equals to 130 degree. These are very easy questions. जब आप करेंगे practice then you can do it very easily. ठीक है? So in this जो आपकी वैल्यू ऑफ x और z है वो सेम आएगी.
y की भी आपकी सेम आएगी, ऑल आर 130. नेक्स्ट वी आर गिवन विद द rhombus. rhombus दिया हुआ है, दिस इज 90 x y z 30. now what we will do, this is 90, angle x equals to 90 degree because of vertically opposite angles. next ये 90 है तो यहां से आप y फाइंड कर लोगे, y plus x plus 30 equals to 180 degree because of angle sum property. The x की value you will put here 90 degree, y is equals to 60 degree. now y की आ गई, angle y equals to angle z because of alternate angles, so angle z is equals to 60. ठीक है, so y और z आपका 60 आ जाएगा, x is 90. क्वेश्चन नंबर 4. ऊपर को आएगी ऐसे, x y z 80 दिया हुआ है ये. नाउ 80 and z is, you can say they are corresponding angles. ठीक है, so if they are corresponding तो आपकी angle z equals to this because of corresponding angles. corresponding angles f होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके f बन रही है, ये और ये एंगल इक्वल होगा. एंगल y is equal to 80 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट, और उसके बाद एंगल x plus 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल. एंगल x is equals to 100 डिग्री. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, बड़ी छोटी सी डायग्राम बनाइएगा आप लोगों ने. y x ये आपका 40, ये आपका z और z 112. नाउ क्या करेंगे आप इसमें, सबसे पहले इसको वर्टिकली ऑपोजिट कर दो. एंगल y इक्वल्स टू 122 बिकॉज 112 वर्टिकली ऑपोजिट. अभी हम आगे करते हैं, ये ट्रायंगल बन रही है. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, योर x विल बी, so that's 152 28. ये आ गया. जो आपकी y है वो है 112. ओके, उसके बाद है आपका ये और ये इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. और यू कैन से x और y जो है एंगल, दे आर अल्टरनेट. so angle z is equals to again 28 degree. done. क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑर्डरली हो सकता है. ओके, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D और B इज 180 डिग्री. सो यस, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज AB is equals to DC. AB is equals to DC equals to 8 सेंटीमीटर है. उसके बाद
AD जो है वो 4 सेंटीमीटर्स है, BC जो है 4.4 सेंटीमीटर्स है। सो ऑपोजिट जो आपकी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं हमेशा। सो इट इज यस, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे इसमें। थर्ड, एंगल A जो है 70 है, एंगल C जो है 65 है। जस्ट वेट, सेकेंड में मैंने कहा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट हियर ऑपोजिट साइड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, सो इसका नो आएगा सेकेंड का। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड। तो थर्ड में आपका नहीं आ जाएगा नो, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स का वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं तो सेम एंगल होना चाहिए। एक का 65 है, एक 70 है, सो इट इज नॉट पैरेललोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन, draw a figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite sides, opposite angles of each measure। ठीक है, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपने, ठीक है, जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसकी ऑपोजिट साइड्स सेम हैं। तो आप कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यू कैन मेक लाइक दिस, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो ये वाली जो है आपकी इक्वल होंगी बट ये वाली अनइक्वल होंगी, ए बी सी डी। सो एंगल ए विल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी बट एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। सो ये आ गया, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Let me erase the board. Going to do next question, that is 5. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। तो लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x। ये हमने किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल। सो पैरेललोग्राम में है तो इनका सम हमेशा 180 होता है। उन्होंने यहाँ पे दिया है, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स दिया पैरेललोग्राम के, तो 180 होगा। 5x इक्वल्स टू 180, x को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे इट इज 36। सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी वी हैव टू फाइंड आल्सो द मेजर ऑफ दिस एंगल। 36 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट का निकालेंगे 108 डिग्री, सेकेंड का निकालेंगे 72 डिग्री। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी आपको एक पैरेललोग्राम दी है, ठीक है, उन्होंने कहा है दो एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, सो विल टेक लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम ये कैसे बना? ग्राम का जीएम, पैरेलल का डबल एल। पैरेलल हम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, तो पैरेलल की लाइंस लगा के जीएम इज पैरेललोग्राम। अगर ईएल लगा दिया देन इट इज पैरेलल। सो वी हैव टेकन दिस। अभी उन्होंने यहां पे कहा है टू एडजेसेंट एंगल्स हैव इक्वल मेजर। ठीक है, सो अभी इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके सम है पहले तो वो देख लेंगे। एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? ये। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी एंगल ए, सो एंगल ए विल बी 90 डिग्री। एंगल ए 90 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 90 वैल्यू पुट करूँ तो मेरा बी भी एंगल 90 आ जाएगा।
सो दिस बोथ विल बी 90 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिस इज पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स का पूछा है, ये चीज आ गई, ये एडजेसेंट है, इसके इक्वल है, तो मैंने इनको 2 ले लिया, 2a। अगर मैं सेम करूं, सेम ये दोनों जो आपके 90 हो जाएंगे, एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल C 90 और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D 90। तभी ये 180 बनेगा ना, एडजेसेंट हम फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग एडजेसेंट, ठीक है। सो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये हमारा टोटल है 360। तो हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के लिए तो 360 होता है, ईच इज 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, डायगोनल्स जो हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वी हैव टू डू। We have done only 6 questions in this video. In next video we will do from 7 to rest that are left. So till then please like, share and comment. Thank you for watching.